Perfect. Okay, so good evening to all the viewers, and we have Mr. Amit Ranade back. He was just telling me offline that there was he was stuck in Singapore and there's a 30-minute delay for watching cricket. But anyhow, I all know. the apps in the world helped him to be caught up with whatever it is. So I'll start with the main topic today, sir. 6 wins. So looks like India has sealed the semi-final. I mean, there's only one way. In fact, there's no way where India is going to the semi-final. Now it'll be whether it's one or two, which way in both they will qualify. So that's one topic. So we'll speak about the Indian performance, and then second, I wanted to speak about realistically in the bottom 3 4. Do we see anybody who can come through? And then the last topic is the last week we had two dramatic matches. One was South Africa versus Pakistan, and then one was Australia versus New Zealand. So it has really put the World Cup on fire. And I think you mentioned this before that at some point when the business end comes, the heat will catch up and things will become a bit murkier. And that's what we are seeing. But the story is not same with India. So yesterday when India hit 229, most of us thought that, India will succumb at some point. I was okay because the pitch was slow. There is a way you can lose matches like this. There were a couple of false shots which were played. We'll come to the performances and all. But then, man, we won by 100 runs. I mean, that was just not. I mean, if we had won by 20 runs or 25 runs, we would still said it's a big win. But then 100 is like we just demolished the opposition. So, what do you see? How do you think India is coming up? I mean, 229. You defend 229 in this conditions? So the first thing first, when you talk about 6 wins and still mathematical calculation whether we still are through or not, is pretty much like a discussion that I heard the other day when they said that can Pakistan win all their 4 matches, 3 matches, and still qualify? So it is pretty much like that discussion. In fact, to me, if you really ask me, just on anecdotal note and just on a humorous side, uh, Pakistan doesn't need 3 matches win to get into the semi-final. I think Pakistan needs the 3 wins to get into Pakistan. So if you really ask me, they are going to struggle to get back into Pakistan also if they don't win the next 3 matches. So the equation is as simple as that. India had already made it to the semi-final because I think the remaining matches that you still have 2 of your easier matches as compared to the rest of the teams. And that is the good thing about India because they have played most of the difficult countries except South Africa is the one that is still remaining. But the rest all are done. You now have to play, I think, against Netherlands, if I'm not wrong. That is one match that is remaining for you. And I So suppose Thursday, then there is so Thursday we have Sri and Lanka. Sri Lanka, Sunday we have South Africa, and then the next South Sunday, Africa, and the then Diwali day is is Netherlands. Netherlands. No, exactly. So, of course, that's been the good, lucky part for us also in a way because that's like a cementing the position. So, no concerns or worries about we being in the semi-final. Now, coming to your second question that you mentioned about जो आपने पूछा कि नीचे की क्या सिचुएशन नीचे की सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है और आज का अगर आपने अपडेट सुना होगा तो एक और इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये हो गई है कि आईसीसी ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसमें सिर्फ टॉप की 7 टीम्स जाएगी तो अब एक दूसरा ही एक मैच शुरू हो गया है जिसमें वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो एक दूसरी तरफ रह गया है पर चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफिकेशन के लिए इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है तो पाकिस्तान लकी है कि होस्ट होने की वजह से वो क्वालिफाई कर जाएगी पर मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान इज लाइकली टू कॉज अ बिग सरप्राइज हियर एंड आई थिंक द वे दैट दे आर गोइंग अबाउट टुडे इज समथिंग व्हिच काइंड ऑफ रियली गिव्स मी अ स्ट्रांग फीलिंग आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ 40-50 बॉल में उनको 21 रन बनाने हैं 6 पॉइंट लेने के लिए सो with these points they are going to climb up beyond Pakistan and actually get into the 5th position now. तो अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग एंड आई मे स्टैंड करेक्टेड ऑन दिस वन बट आज की अगर मैच अगर अफगानिस्तान जीत जाती है तो वो 5वें नंबर पे आने वाली है सो आई थिंक द बॉटम 3 struggle
I think looks to me between England, Netherlands, and Pakistan. Those are the three teams that I see which are likely to struggle in the bottom. मैं फिर वापस से यही बात बोल रहा हूँ कि श्रीलंका हो गया, एक ना एक मुझे कहीं अभी भी लगता है कि एक मर्फीज लॉ और लॉ ऑफ एवरेजेस विल सेट इन, बट इंडिया सीम्स टू बी डिफाइंग दैट. एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट मैं खुद भी थोड़ा इस मोमेंटम में था और इस मूड में था कि लग रहा है शायद से वो आज का दिन है. एंड ऑनेस्टली एग्जैक्टली लाइक यू सेड कि आई वाज नॉट फीलिंग टू बैड अबाउट इट बिकॉज बट आई थिंक बुमराह एंड शामी हैव बीन आउटस्टैंडिंग. और आई थिंक आप और मैं ये कई बार बात कर रहे थे शामी के बारे में. आई थिंक हमने हमने इसके पहले भी दो पॉडकास्ट पे डिस्कस किया. मैंने आपके दूसरे पॉडकास्ट भी सुने और आप हर बार शामी को आप कह रहे थे कि शामी को होना चाहिए टीम में, और वो बिल्कुल सही था क्योंकि जो जो एक्यूरेसी वो ला रहा है अपनी बॉलिंग में. और सबसे अच्छी बात है कि देखिए बॉलिंग, अच्छा मैं खुद भी क्रिकेटर रह चुका हूँ, बहुत क्रिकेट खेला है मैंने. एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है और जो शामी और बुमराह करते कि आप में 200 की भी स्पीड हो तब भी उससे कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप बॉल को स्विंग या सीम से मूव ना करा पाए. पेस का कोई वैल्यू नहीं है. आप हैरिस रॉफ की कंडीशन देख ही रहे. तो द डिफरेंस व्हाट इज कॉजिंग, एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका डिफरेंस ये है सबसे बड़ा कि इंडिया में जो निप आपको शामी और बुमराह प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी वजह से फ्रंट टॉप लाइन ऑर्डर कोई भी फायर नहीं कर पा रही है. और जब तक फ्रंट टॉप लाइन आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट नहीं देगी इस वर्ल्ड कप में, जैसे हमने पहले भी कहा था कि 25 से लेकर 40 ओवरों तक जो टीम विकेट नहीं ले सकती उसका ये वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल है. वैसे ही जो टीम आपको अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाएगी या जो ओपनर्स आपको स्टार्ट नहीं दे पाएंगे वहां भी स्ट्रगल है. और आप ये देख रहे हैं इंडिया का रोहित शर्मा, मतलब आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट हिम फॉर द वे ही वेंट अबाउट इट. आई मीन मैंने उसको पूरे वर्ल्ड कप में ऐसे खेलते नहीं देखा था, पर उसने जो गियर चेंज किया, जो वो सीधा टॉप गियर में आया या फर्स्ट गियर में आया, वो इनक्रेडिबल था. और यही डिफाइन करता है एक अच्छी कैप्टनसी को. सो मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर वही है कि इट वाज वेरी स्मार्ट कैप्टनसी, इट वाज एक्सट्रीमली गुड बॉलिंग, एंड आई थिंक बैक्ड बाय बॉडी लैंग्वेज एंड द कॉन्फिडेंस दैट द टीम हैड फ्रॉम बॉल वन. आई मीन डेविड मलान वाज स्ट्रांग, बट एट नो पॉइंट मुझे ऐसा कहीं भी लगा कि इंडियन टीम वाज गिविंग अप. सो that's where I believe the potential of the Indians currently lie. And I just wish that they take it through up to the final. अब ये अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये, हाँ आई थिंक आपने पॉइंट्स टेबल डाला है और आई थिंक मेरा असेसमेंट सही था ना कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान से ऊपर चला जाएगा, श्रीलंका अफगानिस्तान इवन मतलब 5th पोजीशन पे आ जाएगा. या अफगानिस्तान 5th पे आ जाएगा. एंड आई एम सॉरी. सो यहाँ से मतलब अगर आप देखें अफगानिस्तान के नेक्स्ट मैचेस जो हैं, सो यू कैन सी हियर, आपका आता है आज श्रीलंका वाला मैच, तो ये तो जीत रहा है. नेदरलैंड्स वाला मैच भी जीत जाएगा, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया और साउथ वही अफ्रीका तो मैं कह रहा हूँ. हाँ हार जाए. तो देखिए मतलब ऑस्ट्रेलिया से हार, मतलब जिस कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया उनको हरा देगा, उतने कॉन्फिडेंस से मैं साउथ अफ्रीका के बारे में नहीं कह सकता. उसका कारण वापस से यही है कि इट इज द स्पिन दैट साउथ अफ्रीका स्ट्रगल्स विद. और करेक्ट. अफगानिस्तान के पास आई थिंक इस वक्त बेस्ट स्पिनर्स अवेलेबल है. नहीं, एंड एक और चीज ये भी देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच लास्ट मैच है अफगानिस्तान के लिए, एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए भी शायद लास्ट मैच है वो. सो व्हाट हैपेंस इज ऐसे मोमेंट पे क्या होता है कि assuming South Africa has already gone to the semi-finals and it has got some 14 points, so they may not have the, अगर नंबर 4 पे गिर रहा है तो साउथ अफ्रीका विल हैव दैट मोटिवेशन टू प्ले रियली वेल एंड कम अंडर द 2 और 3 कैटेगरी. लेकिन अगर वो नहीं है तो वो अफगानिस्तान से हार भी सकता होता है. मेनी टॉप टीम्स लूज देयर लास्ट मैच, दे डू लूज देयर लास्ट मैचेस इवन टू सम ऑफ द मिनोज आल्सो. अफगानिस्तान को मिनो कहना बिल्कुल ही गलत होगा मतलब, बट या सो इट गिव्स देम अ चांस. एंड आई आल्सो वांटेड टू शो यू समथिंग एल्स आल्सो. आप ये देखिए अभी न्यूजीलैंड का हालत देखिए ना. न्यूजीलैंड प्ले 1 मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका,
one match against Pakistan and one match against Sri Lanka. So ये टीम थोड़ा सा ना फंसा हुआ है, क्योंकि आपका देखो इंडिया के साथ हार गया है। न्यूजीलैंड का एक चीज क्लियर है, वो चाहे किसी को भी हराओ पाकिस्तान से हारेंगे वो। बिकॉज देयर इज एन पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए वो एक बनी टीम है। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप में हमेशा अपना गेम रेस करती है। जैसे न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में ओवरऑल अपना गेम रेस करती है, वैसे ही पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना गेम रेस करती है हर वर्ल्ड कप में। तो ये एक डिफिकल्ट मैच है। और दूसरा डिफिकल्ट मैच उनका साउथ अफ्रीका के साथ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को हराना उनके लिए इतना आसान नहीं है। काफी सिमिलर टीम्स है, दोनों पेस पे खेलती है, दोनों पेस पे रिलाई करती है। साउथ अफ्रीका के पास एडेड एडवांटेज है केशव महाराज और शमसी का, जो कि उनको एक अच्छी स्पिन डेप्थ देता है। तो उनके लिए डेफिनेटली, मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ न्यूजीलैंड इज एबल टू गैदर ओनली 2 points बियॉन्ड दिस एंड नॉट मोर देन। correct, and which means that they'll end up at 10 points, and we are looking at an India versus New Zealand semi-final. Because what happens is the moment they get the 2 points, ना मुझे नहीं लगता कि कोई और टीम, whether it's अफगानिस्तान और इवन पाकिस्तान इन अ वे, प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो उस नेट नहीं रन नहीं, रेट को यू आर राइट, यू आर राइट। जोड़ पाएगा। नेट रन रेट नहीं मैच कर पाएगा। सो बट पाकिस्तान हैज इजी गेम्स। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के साथ जीतता है हमेशा, बांग्लादेश और इंग्लैंड के साथ जीत जाना चाहिए। इंग्लैंड तो जो लास्ट मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगा वो तो बस फ्लाइट का, एक पैर फ्लाइट के इसमें होगा और दूसरा यहाँ होगा, तो आई डोंट थिंक दे विल हैव एनी मोटिवेशन टू विन। एंड बांग्लादेश फॉर सम मेरे लिए रीजन, इंग्लैंड 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 हैज बीन अ शॉकर। मतलब आई जस्ट हाँ कांट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वर्ल्ड कप खत्म करके एक और इमीडिएटली वर्ल्ड कप भी स्टार्ट किया तो शायद से इंग्लैंड इससे बेटर परफॉर्म करेगा इमीडिएटली भी। पर पता नहीं क्या क्या हुआ है, अंदर की स्टोरी क्या है बाहर आ नहीं रहा है। उनकी मीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारे भी एक्सेस पॉइंट्स कम है वहां पे, तो इन्फॉर्मेशन इतनी आ नहीं रही। राइट राइट। सो यही मैं दिखा रहा था कि मुझे मुझे पर्सनली ये लगता है कि यू नो न्यूजीलैंड थोड़ा सा फंसा हुआ है, बट अफगानिस्तान हैज अ चांस, पाकिस्तान आल्सो टेक्निकली हैज अ चांस, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान नेट रन रेट से मार खा सकता है। सो देयर इज एन इशू देयर, एंड दे हैव टू प्ले वन गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आल्सो, सो देयर इज अ देखिए प्रॉब्लम। पाकिस्तान का ऐसा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों इतना बुरा खेल रही है सॉरी, साउथ अफ्रीका के कि साथ जी दोनों में, हो चुका मैच। सॉरी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान और इंग्लैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही इतना बुरा खेल रही है कि उस दिन जो ज्यादा बुरा खेलेगा वो हारेगा, वो ऐसी सिचुएशन है। आई मीन इट्स उल्टा सिचुएशन की, जो अच्छा खेल जाएगा वो जीत जाएगा। इन दोनों के केस में जो उस दिन एक्स्ट्रा बुरा खेलेगा वो हार जाएगा, वो ये कंडीशन है इन दोनों की। और पाकिस्तान में तो इस वक्त की टर्मोइल मतलब इस हद तक ज्यादा है कि मुझे पता नहीं कि आपने न्यूज पढ़ी कि नहीं, इंजमाम ने रेसिग्नेशन दे दिया। मतलब ये सॉरी मैंने सॉरी, मैं आज म्यूट तक कर कभी रहा। किसी वर्ल्ड कप में, मतलब मैंने कभी किसी वर्ल्ड कप में आज तक नहीं सुना कि किसी वर्ल्ड कप के दौरान किसी टीम का चीफ सिलेक्टर रिजाइन कर दे। मतलब मैं ये, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। नहीं, सो एंड यू यू मे नो आल्सो उनका, हैव हर्ड दिस, यू मे आल्सो हैव हर्ड दिस कि बाबर आजम का जो पर्सनल चैट है व्हाट्सएप का, वो एक जर्नलिस्ट ने उसको रिलीज कर दिया, पब्लिक डोमेन में डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये है कि मतलब उस टीम में इस तरह की बातें हो रही है कि बाबर आजम साहब जका अशरफ साहब को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, जका अशरफ साहब फोन आंसर नहीं कर रहे, और फिर जका अशरफ मीडिया में आके बयानबाजी कर रहे हैं और डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो मुझे फोन क्यों करेगा, मैं तो पीसीबी का चेयरमैन हूं, उसको अगर बात करनी भी होगी तो वो मीडिया मैनेजर से करेगा। तो इस किस्म की जो चीजें चल रही है तो ऑब्वियसली प्लेयर्स में फर्क तो पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी पाकिस्तान की तरफ से, न्यूजीलैंड एक इसलिए क्योंकि उनकी बनी टीम है कि वो समहाउ जीत जाते हैं, पर बाकी दोनों के साथ में मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आई थिंक शाकिब अगर फिट होके वापस आ जाते हैं तो टफ फाइट देते नहीं, सो शाकिब हैज कम बैक, लेकिन लेट मी टेल यू दैट बांग्लादेश itself has a too many squabbles। आप देख सकते हैं वो जो तमीम इकबाल और शाकिब का जो पहले से ही है प्रॉब्लम है, दे आर नॉट जेलिंग वेल, एंड व्हाट हैं। आई फील तमीम तो इज, आया नहीं, नहीं वही तमीम तो तो कह रहा आया हूँ कि नहीं वो ना। नहीं है, हाँ वो नहीं आया, तो वहीं से उनका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। सो देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड टू मोहम्मदुल्लाह कि व्हाट इज हैपनिंग, एंड देन ही सेड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्पीक, बट आई विल टॉक आफ्टर द आफ्टर द वर्ल्ड कप करके।
पर So मुझे ऐसा लगता है कि महमदुल्लाह को इस बार वो रैंकिंग में ऊपर भेजेंगे बैटिंग ऑर्डर में, और जो कि उनकी सही बैटिंग पोजीशन है। आई थिंक इस वक्त अभी अगर आप देखें तो उनको एक स्टार्ट के बाद में एक थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे एक अच्छा बैट्समैन चाहिए, जो मिसिंग है अभी। जो महमदुल्लाह अनफॉर्चुनेटली सिक्स या सेवन पोजीशन पे आके अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा खेले, 50, मेरे ख्याल से 50 या कुछ रन बनाया उन्होंने, उनको शायद से ऊपर भेजा जाएगा। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, मतलब ही इज अ वेरी रिसोर्सफुल बैट्समैन, वेरी यूटिलिटी बैट्समैन। ही कैन प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ डेप्थ इन द बैटिंग दैट यू रिक्वायर। क्योंकि देखिए आई थिंक अगर शाकिब वापस आ जाते हैं, और अगर टॉप ऑर्डर में से अगर शैंटो या लिटन कोई भी फायर कर जाता है, तो उनको सिर्फ एक मिडिल में 30-40 ओवर तक लेके जाना है, एंड दे विल बी लुकिंग एट अ स्कोर ऑफ 280 प्लस अगेन। एंड पाकिस्तान का देखिए ऐसा है कि ये टीम सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकती है। अगर 280 चेज करना होगा तो आप कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या करेंगे अच्छी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। तो अभी थोड़ा नीचे के जो टेबल में थोड़ा सा प्रिडिक्शंस थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि दो मोस्ट अनप्रिडिक्टेड टीम्स लाइक इंग्लैंड एंड पाकिस्तान आर सिटिंग देयर। कोई दूसरी टीम होती तो शायद से हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट कर देते। पर ऊपर के टेबल में मेरे ख्याल से थोड़ी क्लैरिटी काफी हद तक आ चुकी है। आई डोंट yeah, थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर एनीवन टू डिस्प्लेस इंडिया फ्रॉम द टॉप पोजीशन नाउ। इंडिया या जाएगी मुझे टॉप लगता पे। है, हाँ, तो इंडिया विल बी 1, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया विल बी 2 and 3, एंड न्यूजीलैंड विल बी 4। और मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान ये 3 गेम्स जीत जाएगा, क्योंकि कल जो इंग्लैंड ने जो हॉरिबल परफॉर्मेंस दिखाया वो नहीं जीत सकता पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकंड टॉपिक और द लास्ट टॉपिक व्हिच आई वांटेड टू स्पीक ऑन, इज दिस दो जो दो गेम्स हुआ, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, मतलब दोनों मतलब बिल्कुल कांटे का टक्कर हुआ, और लास्ट बॉल में जाके ही पता चला कि हुआ क्या करके। नाउ आई कम टू द फर्स्ट गेम, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। यू वर ऑन द नेट, आप मैच लाइव नहीं देख रहे थे, मैं मैच लाइव देख रहा था। एंड so there were a lot of emotions which went through and all. I think South Africa, thanks to Pakistan, now every team knows कि South Africa को कैसे हराना है। उनको पहले बैटिंग मत दो, खत्म, मतलब because they should have won it very very easily. बट राजीव, वो आप लाइव देख रहे थे तो मुझे बताइए, वो जो शमसी का एलबीडब्ल्यू बहुत क्लोज था क्या? Yeah, it was. And so the thing is कि, see, there are two ways to look at it. Now, Harris Roth or any batsman who's coming and trying to bang it, right? अब आप लास्ट ओवर्स में आते हैं तो आप यू आर हैविंग एन ओल्ड बॉल, सो आपको थोड़ी ना ज्यादा ये डालना पड़ता है, यू हैव टू पुट मोर फोर्स टू गेट द बॉल टू द स्टंप्स। So the umpire has this mind that he would have probably tried to angle it in. आपका बॉल एंगल हो रहा है करके, उस स्पीड पे वो देख नहीं सकता कि वो सीधा आ रहा है कि कैसा आ रहा है करके। एंड करेक्ट somebody करेक्ट। like Haris Rauf is very wayward, he is not in one line। ये एक शमी होता या सिराज भी होता ना, तो then he would have said कि नहीं है। Even जसप्रीत बुमराह also has the same problem that you're not, आप एंगल कर रहे हैं करके सोच सकते हैं। वही बॉल शाहिन शाह अफरीदी या उसी दिन वसीम जूनियर एंड अडाला होता ना, आउट दे देता वो। And then finally it became अच्छा, umpire's call. But the thing is, you also have to understand कि वैंडर डूसन का जो हुआ था, and I think I messaged you also, लेकिन आप देख नहीं पाए, उस पे भी मैं वही देख नहीं था पाया कि वो। उसामा मीर, ना उसामा मीर is just a leg spinner, the ball, impact of the ball was on this thing, it's an umpire's call, and then they said that it will go on to hit the stumps also when the ball is angling towards the leg side, so which is impossible। तो मुझे तो DRS पे बहुत बहुत डाउट है उस पे, but I can say when the ये तो replays was done, Shamsi was out। but the thing is, अगर आप वाइंडर डूसन को नहीं देते थे, जो सिर्फ 2 ही विकेट तब गिरा हुआ था, तो देन ये नौबत आता ही नहीं था। हाँ, नहीं नहीं, ये डिस्कशन तो डेफिनेटली वैलिड नहीं है कि उस एक डिसीजन की वजह से कुछ हुआ, बिकॉज वो हैंडीकैप दोनों टीमों के लिए। तो ना मैं कभी भी मतलब ये तो बात जो मीडिया पाकिस्तान की कर रही है कि हमें अगर वो आउट दे तो मैच, ये सब तो बिल्कुल फालतू की बात है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों टीम्स के पास है। पर मैं बिकॉज देख नहीं पाया, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछता हूँ, बिकॉज आप लाइव देख रहे थे तो वो ऑब्वियसली नहीं, so फर्क there are पड़ता है two उससे। things here, one, Pakistan played really well, you have to say, बैटिंग में एक इंटेंट दिख के आया, but so there were 3 mistakes, so I'll come to the 3 mistakes। so batting was done with a lot of intent, जो बैट्समैन आया, I won't say they were very, like बाबर को छोड़ के सभी बैट्समैन they were trying to
कि चलो let's move on with this, you can't keep staying. So even when they were 6-7 wickets down also वो मारने की कोशिश कर रहे थे to push that score till 300, because they know कि अफगानिस्तान के साथ 280 होके मैच फंस गया था करके. The second was their bowling was absolutely brilliant, especially old ball मिला तो शाहीन शाह अफरीदी, रॉफ और वसीम जूनियर ने तो, इनफैक्ट वसीम जूनियर ने तो क्या बॉलिंग डाला. एंड आई जस्ट कांट, मुझे पता नहीं कि हसन अली को कैसे ले रहे थे वो. दैट बॉय वसीम जूनियर वाज फार बेटर. एंड थर्ड वाज फील्डिंग. आप मान नहीं सकते कि दिस फेलो हारिस रॉफ बॉल्ड, मतलब एट हिज स्पीड, इसने वापस निगड़ी ने मार दिया उसको और उसने रोल होके कैच लिया उसने. सो दैट इज सम कमिटमेंट टू अ फास्ट बॉलर कमिंग ऑन हिज, मतलब वो अपने इस पे क्या कहते हैं बॉल थ्रू पे है, मतलब बट देन ही जस्ट गिर के वो कैच लिया उसने. सो पर राजीव एक बात बता, पर एक राजीव एक बात बताइए, मैं ऑफ कोर्स टीवी पे नहीं देख पाया, पर I was a little surprised that Iftikhar came to to bat with 30 overs remaining. I mean, yeah. So I'll come to Iftikhar, all the mistakes. So these were three. So they did batting well, they did bowling well, they did fielding well. Fielding दिखाता है कि आपके मन, आपका इंटेंट क्या है करके, right? And I think that was done very well. मतलब बहुत अच्छा किया फील्डिंग, जान लगा दिया उन्होंने, सब लेट के किया उन्होंने. Now where the mistake was, one was Babar's captaincy was poor is an understatement. So मैं भी वही कह रहा था. हाँ, first thing, he himself when he came in, अगर आप कहते हैं कि ठीक है मैं I will stay, then you stay. You don't go for the shots, right? I mean आप 50 करके आप कुछ तो स्वीप मारने की कोशिश की जो आप खेलते ही नहीं हो ऐसा. So that was one. Second, इफ्तिकार को उन्होंने सोचा कि he will hit and get runs quickly करके, but then he struggles against spin. और वही हुआ, उसने उसको विकेट दे दिया उसने. इफ्तिकार 5, 6, 7 ओवर का बैट्समैन है. करेक्ट. इफ्तिकार को आप तब लाइए जब आखिरी के 6 ओवर, 8 ओवर, 7 ओवर बचे हो. he should play after Shadab. Shadab is a far better batter, तो उसको पहले भेज सकते हैं. Now so that was one more mistake in the batting side of it. So but then still, but the final thing is in the batting thing, you can't, मतलब आपने 20 balls खेला ही नहीं. Now yesterday imagine Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav 19 runs या 21 runs जोड़ दिया उन्होंने 25 balls में. That is gold है वो, क्योंकि आप वो 25 बॉल खेल गया. इट्स गोल्ड. सो अगर वो 20 बॉल खेल जाते, वो सब मिलके 20 बॉल खेल जाते तो 15 रन भी एक्स्ट्रा बन जाता तो साउथ अफ्रीका खत्म था वहां पे. और चौथी गलती जो मुझे लगा, ठीक है, मैं कहूंगा कि ये गैम्बल है. थोड़ा हो सकता है कि गलती इसको नहीं कही जाए, गैम्बल कही जाए, कि एक सिचुएशन पे वो ये आगे थे कि उसके पास 5 बॉलर ही नहीं बचे थे. जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ओके विद दैट, आई एम ओके विद दैट. तो मैं गैम्बल के लिए तैयार हूं. पर मेरे को नवाज तो उस गैम्बल में जो मुझे एक डिजास्टर दिखता है, वो ये कि आप नवाज को लेके आते हैं. मतलब एक तो ये कि उस बंदे का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पे है. वो ऑलरेडी इंडिया के साथ लास्ट ओवर में सफर कर चुका है, इसके पहले के मैच में भी सफर कर चुका है, और आप फिर भी उसको लाते हो और वो फिर वही गलती करता है. सही, स्लाइडिंग डाउन द लेग साइड. आप मानोगे तो कि महाराज हैव टू डू नथिंग. वो सोच रहा था मैं कैसे रन लूं करके सोच रहा है अभी, और उसने बिल्कुल लेग स्लाइड में दिया, उसने बस पलट के मार दिया, चौका चला गया. उसने वहीं फेंका जब फील्डर नहीं था. तो हॉरिबल बॉलिंग. एंड आप विश्वास करिए, मैं जब पढ़ रहा था क्रिक बज़ में, तो मुझे एक लेवल पे मैं ये मान चुका था कि पाकिस्तान ये मैच जीत चुकी है. पर जैसे वो लिख के आया कि नवाज टू बॉल, तो मैंने इमीडिएटली मैं कॉन्फिडेंट था कि ये मैच खत्म हो गया. They should have got Usama Mir because that guy had picked 2 wickets. Usama Mir को भी मेरे हिसाब से महाराज मार देता, because और शादाब कहाँ था? Shadab, so what happened is Shadab got injured in the first second over while fielding. उसका सर कहीं टकरा है ग्राउंड पे, so he got a concussion substitute in terms of in Usama Mir. So bowling Usama Mir but concussion, no, but concussion substitute can be replaced. The only thing is that the fielder has to spend those amount of time before he comes to bowl again. तो उसके लिए तो काफी टाइम होगा. नहीं तो उसने कंकशन सब्स्टिट्यूट ले लिया और अंपायर ने अलाउ किया ना.
अच्छा, तो ये थोड़ा सा भी ग्रे थोड़ा एरिया, ये ग्रे सरप्राइज। है, हाँ ये ग्रे है। बट एनीवेज उसामा मीर गेव वाज बेटर प्लेस टू पिक अप अ विकेट बिकॉज वो ऑफ में डालता, बैट्समैन के ऑफ साइड पे डालता, तो या तो आउट होता या फिर अगर वो बहुत ज्यादा फ्लाइट कर देता तो महाराज मार देता, बिकॉज महाराज इज अंडरस्टैंड्स बैटिंग, उसको पता था करना क्या है नो, इज अ गुड बैट्समैन, इज अ गुड या बैट्समैन। आप अगर आप उसका इंडिया के अगेंस्ट भी अगर गेम देखेंगे, या इवन जो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट वो हारे, उसमें उसी ने आखिरी में रन 40 बनाए। 40 40 तो वो 40 बनाया उसने। तो हाँ, और वो अच्छे लंबे हिट मारने की कैपेबिलिटी रखता है। पर आई थिंक पूरा वर्ल्ड कप का सिनेरियो बदल जाता अगर कभी वो मैच पाकिस्तान निकाल के ले जाता। तो हाँ, आई थिंक इस तो वक्त हम आज वो बहुत आज दूसरे आज दे वुड हैव वेरी बीन सिटिंग इन अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस। ये इंजमाम डिफरेंट। आई हाँ, ये पॉलिटिकल चीज या जो भी डिस्ट्रैक्शंस है आपकी तरफ पे नहीं रहता था। एंड देन फाइनली आई अच्छा, कम टू अफगानिस्तान 7 विकेट से जीत गया है बाय द वे। हाँ इट वाज नोन, मैं अभी देख रहा था 10 रन चाहिए था उसको। नहीं बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो एक और बीच में मिलर और इसका मार्करम का पार्टनरशिप हुआ, और वहां पे बाबर ने डिड नॉट पुट सो मच प्रेशर, ही शुड हैव। जब उसने प्रेशर फर्स्ट टाइम डाला अफरीदी को लेके आके, मिलर आउट हुआ और उसके बाद ही विकेट डाउन, लेकिन तब तक के लिए उन्होंने काफी मार दिया था। दे डिड नॉट हैव सो मच ऑफ दिस थिंग। नहीं, आई बट थिंक, एनीवेज नहीं देखिए, आई आई थिंक यू थिंक आर राइट। सी, आई वुड से दैट पाकिस्तान had a chance, but South Africa made it, उसने वैसा रबर की तरह खींचा उसको, आराम से जीत जाना चाहिए था साउथ अफ्रीका को, 4 विकेट से तो जीत बराबर गए। है, बिल्कुल सही बिल्कुल बट द सही कह रहे हैं आप। थ्रिलर बट द थ्रिलर वाज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो मतलब, एंड रचिन रविंद्रा ने तो मतलब आई थिंक ही इज गोइंग टू से, मतलब जो अभी आईपीएल का मिनी ऑक्शन होने वाला है उसको तो आग लगाने वाला है वो बंदा, मतलब वो लड़का नहीं, क्या ही खेल रहा वो हो। बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, मोर देन टैलेंट, मुझे जो उस लड़के की अच्छी बात ये लगी कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपना गेम चेंज कर सकता है। और इस इतनी कम एज में, इतने कम मतलब उम्र में इस तरह का मेच्योरिटी रखना मतलब इज इनक्रेडिबल। क्योंकि एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि ही वाज गेटिंग अ स्टेबल पार्टनरशिप, एक्सेप्ट दैट 1 और 2 पार्टनरशिप्स ही गॉट, एंड इन द एंड जो नीशम के साथ खेला वो, और नीशम ने तो मैच निकाल ही दिया था ऑलमोस्ट। मतलब अगर हम्म। एक हिट उसका और लग जाता, इंडिया वुड हैव काइंड ऑफ कम आउट क्राइंग आउट ऑफ द फील्ड, अगर इतने रन बनाने के बाद हार जाती तो। I think New Zealand should get a lot of credit, and I think they will draw a lot of confidence also out of this game. I'm just hoping and banking on this confidence against their match against Pakistan, because somehow they have a tendency to go lose when it comes to Pakistan. Let's see. I think Ravindran can make a big difference. I think uska temperament बहुत strong है. मुझे ये लगता है कि सी आपका मैच बैंगलोर में है, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, एंड आई थिंक इफ इट्स अ गुड बैटिंग विकेट, देन जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 360 और लगा दिया था पाकिस्तान के साथ, दीज पीपल कैन आल्सो पुट इट अप, एंड द मोमेंट दे स्कोर 330 340 देन पाकिस्तान इज नॉट विनिंग। तो बाय द वे, इंडिया श्रीलंका वानखेड़े पे है, और वानखेड़े की पिच, मतलब मैं बॉम्बे पूना, मैं काफी क्लोज है मेरे, तो वानखेड़े की पिच बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो सीमर और स्पिनर दोनों को असिस्ट करेगी। तो दोनों अब को आपको असिस्ट करता है, या बट क्या आई थिंक लगता है इंडिया का लाइनअप? I think they'll go with the same lineup. The only thing is they may शार्दुल को शायद चांस दें इंस्टेड ऑफ सिराज, जस्ट टू सी कि क्या चल रहा है, नॉट क्योंकि नॉट अश्विन नॉट अश्विन नॉट अश्विन, अश्विन तो वानखेड़े में बहुत छक्के खाए उसने, बहुत छक्के खाए अच्छा, उसने, अच्छा। because Wankhede and Chinnaswamy are six hitting grounds, and for a right hander off spinner is like, मतलब उसके लिए तो गोल्ड है। I feel ईडन में अश्विन आ सकता है, ईडन गार्डन्स में वहां पे आ सकता है। ईडन में अश्विन विल बी यूजफुल। एक तो ग्राउंड भी हाँ बड़ा है, और वो विकेट विकेट भी बड़ी लो और बड़ी स्पिन खेलती है ईडन की। तो करेक्ट, एंड वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। so उस दिन, so now what happens is now the bowlers will start getting एक But एक करके but सबको। what is the news on Hardik? What is the news on Hardik? Is he not going to be available for the next match? No, he's not available with Sri Lanka, but he's traveling to Mumbai, which means that he will do some drills with the team and then they will take an assessment. Looks like he may come back in the match against South Africa. But I think अगर वो साउथ अफ्रीका वाला गेम भी नहीं खेल पाया and he plays only with Netherlands, I'm okay with it, क्योंकि वो काफी दिन से T20 सब खेलते आ रहा है, so he is not out of touch, he'll नहीं be नहीं, okay. हार्दिक का मुझे कभी कोई, मतलब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मतलब हार्दिक को अगर
डायरेक्ट सेमीफाइनल। Yeah, you are right. I'm in agreement with you. You, He's a big match player. He's a very strong, gutsy player. वो किसी भी तरह के प्रेशर में आने वाला पर्सन नहीं है, वो जानता है. He knows how to play big occasions. I think his captaincy with this Gujarat team in the IPL has, I think, helped him a lot in terms of maturing as a correct. individual. I think वो बहुत benefit करी है उसको, कोई Correct, and doubt नहीं है उसमें. let's not forget in that semi-final against New Zealand, he got some 30 odd runs and he obviously played a fault shot. But the thing is, he's not going to do the same mistake this time around, right? इस बार ऐसा कुछ होगा तो नहीं करेगा वो गलती. वो तो रुक के आप खेलेगा. आप कह रहे हो सिराज की जगह शार्दुल को लाएंगे आप कह रहे हो? शायद मुझे लगता है. भाई पहले तो श्रेयस अय्यर की जगह ईशान किशन को लेके आइए आप, अरे उसके ये पहले तो आप एक कुछ ना करिए. अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. सो लास्ट 3 minutes विल स्पेंड ऑन दिस वन. मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर शुड नॉट प्ले. खत्म है. Not at मतलब all. ईशान किशन शुड जस्ट गेट इन एंड देन वंस हार्दिक इज बैक स्काई हैज टू प्ले. सो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर का तो बनता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है. स्काई हैज टू प्ले. मैंने आपको परसों परसों आपको स्काई का बोला था कि आज खेलेगा वो. हाँ, या यू आर राइट. नहीं, एंड आपका हर प्रेडिक्शन राइट होते जा रहा है. ऐसा कोई यही नहीं है. नहीं, स्काई. और अब बॉम्बे में मैच है, उसका होम ग्राउंड है वो. हाँ, वो तो खेलेगा, वो खेलेगा. नहीं, वो तो तो हो गया. मेरे हिसाब से उसका होना बहुत जरूरी है. और ईशान किशन आई थिंक गिव्स यू, मुझे थोड़ा सा मतलब, खैर अभी इट्स टू अर्ली टू से एंड इट इज नॉट राइट आल्सो टू, बट आई वांट शुभमन गिल टू प्रूव हिज वर्थ अ लिटिल बिट. मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दे रहा है वो आसानी से. आई थिंक ही इज गॉट सो मच ऑफ टैलेंट. और उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब आई वुड से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, ऐसा मुझे लगता है. डेफिनेटली क्योंकि मुझे लगता है कि शुभमन गिल थोड़ा ठहर के खेले. एंड इफ somebody has to just talk, take your first 20-30 balls and then you will rock, don't worry एंड करके. यू हैव अदर साइड जो आपको इतना कंफर्ट दे रहा है कि वो हर बॉलर को उधेड़ कर रख दे रहा है. और आपको मतलब आप अपना टाइम लेके खेल सकते हैं. जब तक आप अपना टाइम लेते हैं तब वो 9 बॉल में 25-30 रन बना चुका होता है. तो आपके पास एक पूरी लिबर्टी है कि आप अपने आप को सेट करें और फिर उसको साथ दें उनका. आई थिंक आई जस्ट फील अ लिटिल आई जस्ट फील दैट लिटिल काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड फॉर रोहित कि उसको वो ऐसा स्टार्ट लेने के बाद भी सामने से उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है. ही डिजर्व्स दैट सपोर्ट एक्चुअली विद द काइंड या ऑफ स्टार्ट्स ही इज गिविंग. या अमेजिंग अप्रोच दैट ही इज टेकन. तो मुझे एक आई हैड दिस क्वेश्चन कि व्हाई डिड so Rohit was playing as a T20 captain in Australia last year, Asia Cup bhi khela, but his strike rates he was जी. struggling, including IPL. But suddenly what has happened? अब one day में मतलब 130, 150 का strike rate निकाल रहा हो. What brought in this change? नहीं देखो, आई थिंक एक तो माइंडसेट का चेंज जो उन्होंने अपने ऊपर काम किया है. और मैं अभी परसों एक मराठी चैनल है हमारा जिसमें काफी क्रिकेट के बारे में डिस्कस होता है. तो मैं और मेरे ब्रदर है ऋषिकेश, उनसे भी मेरी बात हो रही थी द अदर डे. और एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ ये टीम गई है. मतलब क्योंकि उन्होंने जब रियलाइज किया तो एक रोहित है जो स्विंग बॉल और स्टीप बॉल दोनों को मारने की कैपेसिटी रखते हैं एट एनी गिवन पॉइंट. आप पूरी इंडियन टीम में अगर आप उठा के रख लीजिए तो सूर्य कुमार यादव एक दूसरे ऐसे प्लेयर है, पर वो काफी यंग है, अभी इमेच्योर है. पर रोहित एक ऐसे एस्टेब्लिश प्लेयर है जो किसी भी स्विंग बॉलर को आड़े हाथों ले सकते हैं. तो ये डिसीजन लिया गया था कि he came up with this idea. I think the best part or the best thing about Rohit is ये कोई उनको बोला हुआ किसी ने सजेस्ट नहीं किया था. उन्होंने खुद आगे होकर लीड लेके ये टीम को बोला कि आई वुड लाइक टू प्ले दैट रोल. एंड इट्स अ बिग थिंग. आई मीन आप सोच के देखिए कि एक कैप्टन जिसके ऊपर प्रेशर है वो इस तरह का रोल करके. अच्छा अभी तो हम सब लोग तारीफ कर रहे हैं उनकी, पर आप ये सोचिए कि ये करते करते अगर मान लीजिए उनका विकेट चले जाता तो आज इंडिया में उनके ऊपर भी तनकीद शुरू हो जाती. Correct. मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग है और आई थिंक कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप. Yes. तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात है. तो वो भी ये चाहते हैं कि he wants to end it on a high and that is why he is going with his natural aggression which is his nature. तो इसलिए वो आप जो चेंज देख रहे हैं, तो दैट इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो
अलग तरीके से खेल रहे थे, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग थे, वो he was still trying to hold back his position, but now he's at a cusp when he knows that this is his last World Cup. फेयर इनफ सही बात है। सो श्रेयस अय्यर खेल रहा है आपके हिसाब से श्रीलंका वाले टीम में मुंबई में? सर मेरे घर के पास में टार की रोड है, अगर वहां श्रेयस अय्यर को जरूर बुलाना, क्योंकि वो उसी रोड पे खेल सकते हैं, पर अदरवाइज मेरे हिसाब से श्रेयस की टीम में कोई जगह नहीं। तो मैंने एक बड़ा ब्लॉग भी बिल्कुल लिखा जगह था इसके, आई रोट अ ब्लॉग ऑन दिस बहुत वन। ब्लॉग इतना फैंटास्टिक था कि मैं वो ब्लॉग पढ़ने के बाद करीबन 2 घंटे के बाद भी हंसता रहा। So you can imagine, the thought with which you wrote, and it is absolutely justified. And the best thing about that blog, what I liked is that he is still living in a denial. He's a very good player of hook shot. Yeah. So, which is very, and I think let's be fair. I think he has got enough chances. I think Indian team right now has a lot of talent waiting, and you have to give equal chances to everyone. Ishan, I fully agree with you, deserves another chance. And he'll Correct. grab it with both hands. I'm pretty Right. sure about it. Right, Chaliye, sir. so thank you, Amit sir. Thanks for doing this. So we'll meet up soon, next Sunday or maybe before that, and see how we are placed. Absolutely. Hopefully, Absolutely. these four only will reach the semi-final. Luck to abhi ऐसे ही रहा है. But good show बिल्कुल, Afghanistan. We have to show मैं good सहमत show Afghanistan. We have to absolutely admire the team. I think the way they have come back and the way they Right. have created a position for themselves in the World Cup, fully given to them. Correct. Right, sir. So thank Chaliye. you and good night. Bye-bye. You take care. Good night. Yeah.